गुलमर्ग इंडिया की हाईएस्ट और दुनिया की थर्ड हाईएस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशन। लोग कहते हैं कि यहाँ आने का मजा तो विंटर्स में है, जब हर तरफ ऑल यूल सी इज स्नो। बट अगर आज आप गुलमर्ग के लश ग्रीन मेडोज, थिक फॉरेस्ट, यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल और एक आइकॉनिक कश्मीरी डिश टेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो चलते हैं फिर। Know the weather will get colder, that it can't always be spring. And when I pushed you in a stroller, you were looking up, singing life like a church hymn. You are gonna find your place, child. Of that much I know, I'm sure. Keep on laughing at the rain, I guess. Isn't that the place to start? Someday you will be stronger than you are now, but you will not know everything. And when the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. Your mother like she's made of gold. After all, she brought you here. And if you're lost, go see the ocean. It will always help you steer. Someday you will be stronger than you are now, but you will not know everything. When the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. Okay जी, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट डे इन कश्मीर। एक्चुअली लास्ट डे होना नहीं था, बट कुछ पर्सनल इमरजेंसी जिसकी वजह से कल निकलना पड़ रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि लास्ट डे गुलमर्ग में स्पेंड करते हैं। एंड द फनी थिंग इज़, पीपल टोल्ड मी कि क्या करोगे यार, इट्स अभी स्कीइंग सीजन है नहीं, इट्स समर्स, तो बोर हो जाओगे, देयर विल बी नथिंग टू डू। अब आपको हमारा तो पता ही है, व्हेन यू से नथिंग, सो वील enjoy the art of doing nothing. और इसीलिए I chose a place that's away from the busy city center and other hotels. Located right next to the Strawberry Valley, Gulmarg Meadows offers an outstanding experience, and that too in an eco-friendly way. In terms of location, this place is surrounded by meadows, mountains, forest, and a small brook flowing right next to it. With 10 Swiss tents that are equipped with all the amenities, this is the perfect combination of comfort and adventure. Gulmarg Meadows के owner Mustafa Bhai is one of the most well-mannered and humbled human beings I've ever met. थोड़ा कैमरा के सामने आने में शर्माते हैं, but off camera he is such a great guy to chat as well as travel with. और उनके साथ I got a chance to visit a place that got opened for visitors after 22 years in 2012.
Located just 10 kilometers from Gulmarg, Bhuta Patri aka Nagin Valley is a picturesque meadow surrounded by mesmerizing landscapes and forest. यहाँ एंटर करने से पहले one has to stop at the army checkpoint to get the required permission since this is a border area. This valley is actually a part of Gulmarg Biosphere Reserve and was opened with the idea of decongesting Gulmarg. Intention तो नेक है, but as travelers, it's our responsibility to preserve its pristine and undisturbed natural beauty. कश्मीर की ऐसी वादियों में जब गर्मा गर्म कहवा मिले तो भले ही पेट भरा हो, लेकिन कमबख्त इस मन का कोई क्या करे। कश्मीर में नोमैड्स या शेपर्ड्स को बकरवाल कहा जाता है। हर साल गर्मियों में द कम्युनिटी बिगिंस देयर जर्नी विद देयर लाइव स्टॉक टू द अल्पाइन पैस्चर्स फॉर ग्रेजिंग बिफोर रिटर्निंग इन अक्टूबर एंड ड्यूरिंग दिस टाइम दीज मड हाउसेज सर्व एज देयर होम्स। इस तरह के मिट्टी के टेम्परेरी घर देखे तो पहले भी हैं, बट इतने कलरफुल आज पहली बार देख रहे हैं। लोग हैं जिप्सीज, गुज्जर लोग जी, जो मूविंग में रहते हैं जी, अप डाउन जिनका रहता है। मोबाइल 6 महीने नीचे गांव में, 6 महीने हम लोग यहाँ निकालते हैं। अब जो ये हम बना रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमें वो नहीं है कि जैसा पुख्ता बनाओ फॉर एवर। ये आर्जी ढांचा होता है हमारा, इसमें हमारा ये 6 महीने का गुजारा हो जाता है। हम अप्रैल से शुरू हो जाते हैं और अक्टूबर एंडिंग तक वापस। मवेशी पालना, इनकी ग्राजिंग हमें वहाँ नहीं मिलती, तो उनको ले आते हैं इधर, तो वो लोग ग्राजिंग करते हैं, हम मुफ्त की हवाखोरी करते हैं। ये कभी बना दिया तो जितना टाइम निकल जाएगा, कभी 10 साल निकल जाते हैं, कभी 15 निकल जाते हैं, तो फिर नया बना। तो फिर जब आप चले जाते हैं, बर्फ पड़ती है, उसके बाद भी ये रहता है, इतना स्ट्रांग होता है। ये स्ट्रांग होता है। यहाँ से थोड़ा ही आगे चलने पे एक छोटा सा गांव है जहां मुस्तफा भाई के खास दोस्त फिरोज चाचा रहते हैं। पूरा दिन इनके इतने किस्से सुने हैं कि एक बात का तो पता चल गया कि इनसे बेहतर इस जगह की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कोई नहीं जानता होगा। आप अभी भी डेली कितना चलते हैं? 4-5 किलोमीटर 6 महीने। 5 किलोमीटर चल लेते हैं। मैं जम्मू से चल के यहाँ आया हूँ बारामूला में, अच्छा। और यहाँ उड़ी एक जगह है जी। उड़ी से हमारी जगह जो है 30-35 किलोमीटर है उस एरिया से, जहाँ से अक्सर हम चल के आया करते। मैंने गाइड बनने से पहले ट्रैवलिंग की है। मैं बम्बई गया हूँ, मैं इधर उधर अपने इसमें देश में खूब घूमा हूँ, तो मैंने अंदाज़ा किया कि ये लोग जो वहाँ से भाग के आते हैं, ये क्या देखने आते हैं, इनको क्या चाहिए। लोग अगर देखने होते तो एक से एक इनको वहीं मिल जाता, फैशन वाले भी। लेकिन यहाँ जो आते हैं ये किस लिए आते हैं, ये ताकि लोग इनको ना दिखे, इनको सारा ये नेचर ही नेचर दिखे। और वो हु हा जो है पू पा गाड़ियों की, वो तो छोड़ के आए हैं, यहाँ ज़रा तन्हाई देंगे। ये मेरा रूल था।
और जिसके साथ भी मैं गया वो ऐसे में खुश हुआ। आदमी के साथ मैं गया, फ्रोजन लेक ऊपर है टॉप पे, और जो पैक लंच था वो खाया, वो कागज़ के डिब्बे में बंद था, और वो सारा वो अब वो छोड़ के गया कि बैग में डाल लो। खुद तो गया उधर फोटो लेने, तो मैंने अपनी अकल से वो जला दिया पहाड़ समझ के। और क्या है, कागज यहाँ भी जला दो क्या होगा, यही सोचा ना। तो वो अपना फोटोग्राफी छोड़ के दौड़ के आया मेरे पास, बोला क्यों जलाया ये? मैंने कहा हाँ जी, तो ये बैग में उठाते फिर गुलमर्ग ले जाते, यहाँ क्या जल गया, कुछ नहीं। तो उसने मुझे ताना दिया कि आप गाइड के काबिल नहीं हो। उसने इतना से घास के तिनके दिखाए, ये इतने से, भाई ये जल गए, ये कहाँ से आएंगे? और इस जगह पे सीड भी आ सकते हैं दूसरी जगहों के, भले वो भी 10 दाने होते और वो भी जल गए। तो पहाड़ पे सब्जी उगती बहुत कम है। तो ये जगह जो है ये हमेशा के लिए, आपने 10 साल के लिए बेकार कर दी। अब क्या बोलूं, वो तो सही बोल रहा है। उन लोगों में ये सिर्फ थी, सिगरेट पी के बिट जो निकाली तो अपनी जेब में, टॉफी खाई तो कागज अपनी जेब में। हमारे लोगों में क्या है, हम पहाड़ को आग ही लगा दें तो बिट कहाँ से जेब में रखेंगे। फिरोज चाचा ना केवल रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल प्रमोट करते हैं बल्कि एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रैक्टिस भी करते हैं। इसीलिए जब हमें पता चला कि उनके बाग में हाक साग लगा हुआ है तो इट वाज टाइम टू पुट माय शेफ हैट ऑन। इसको डाउन करके तोड़ना। तो ये आप कह रहे हैं ये पत्ते को ऐसे डाउन करना। ओके। बनाने में बहुत से तरीके हैं। अच्छा। एक पूरा इसको किसी चीज में पीटना पड़ता है, पिटाई करके पूरा वो हो जाए, पेस्ट बना देते हैं। हाँ, पेस्ट। उसके बाद बनाओ, उसका अलग ही जायका हो जाए। जो पानी है ना, ऐसे करके वो इसमें जाना नहीं चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए। तो थोड़ा सा दबा के। हाँ, थोड़ा दबा के। हाक के साथ कनेक्शन है, इट गोज बैक आई डोंट नो 32 इयर्स, क्योंकि माई मॉम इज़ फ्रॉम कश्मीर और उनको कभी भी फरीदाबाद में मिलता नहीं था हाक साग। तो व्हाट शी डिड वाज शी रीइन्वेंटेड दिस डिश एंड शी स्टार्टेड यूजिंग पालक इंस्टेड ऑफ हाक। और हम लोगों को वो डिश इतनी पसंद आने लगी कि हमारे घर अब वो रेगुलर हो गई है। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस। कुछ भी हो जाए, कभी भी और कुछ बनाने का मूड नहीं है, पालक आई और ये सेम स्टाइल प्रिपरेशन, थोड़ा सा अलग रहता है लेकिन मोर और लेस द सेम, एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस। सो द रीजन व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग इज दिस इज, मम्मी ये आपके लिए।
मास्टर शेफ जैसा फील हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डर लग रहा है क्योंकि अगर पीछे नज़र घुमाओ ना, इतने सारे लोग बैठे हैं और मैं बड़े जोश से बना रहा हूँ, और अगर ऐसा हुआ कि ये अच्छा नहीं बना तो मेरे को यहाँ से ना अगली बार मैं बैन हो जाऊँगा, मेरे को कोई गुलमर्ग नहीं बुलाएगा। जब स्टीप आती है इसको तो ये ऊपर इसके साथ चिपक जाता है पता इसका, अच्छा। तो फट सकता है प्रेशर। अच्छा, तो ये मतलब थोड़ा खुला रखना है या ऐसे ढक के? वो ठीक है, लेकिन बंद नहीं करना है। पूरा बंद। कड़छी की क्वालिटी देखो यार, कोई घर पे आ जाए उसको एक पड़ जाए नहीं ऐसी हो जाएगी उसकी, ऐसी क्वालिटी। हमारे यहाँ क्या मिलते हैं एकदम मरियल सी पतली सी, ये है असली कड़छी। कड़छी नहीं, कड़छा है। शिव, अगर ये एपिसोड सही बनाना पड़ेगी तुम्हें। पानी थोड़ा डालना, नहीं हो गया, बन गया। थोड़ा सा चख के देखिए आप भी। देखिए मेरा तो सिंपल सी बात है, मेरा ऐसा मानना है कि आप प्यार से खिला दो तो कुछ भी चले। आप दाल चावल कुछ भी सिंपल खिला दो, प्यार से खिला दो ना, हो जाएगा उससे, काम चल जाएगा उससे। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको प्यार से खिलाने वाला हूँ, तो अगर अच्छा नहीं भी खिला आप भी मान लेना कि प्यार से खिलाया, खुश हो जाना। बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा। बहुत अच्छा खाए। सच बोल, बहुत टेस्टी, पक्का एकदम। बाकी सबने भी बोल दिया है और बच्चे ने भी बोल दिया है कि बहुत टेस्टी है। अगर ऐसा है तो फिर अब देख लो, मैंने किसी को कोई पे नहीं किया है, सब दिल से बोल रहे हैं। और अगर आपको नहीं विश्वास तो आ जाओ और चख लो, पता चल जाएगा। आप खुद टेस्ट करके देखो, आपको खुद ही पता लग जाएगा। एक्चुअली नॉट बैड। समय देने के लिए और इतने प्यारे बात लोगों से ये मिलवाने है, के लिए। तो एक ही देश के रहने वाले ना, अगर हम में ये चीजें भी ना हो फिर क्या रखा है हम। क्या सही। और खासकर आप तो आए और गए, आप एक बात ले आओ 10 आदमी को ठीक है, और आके रहो हमारे यहाँ, तो हम खुश हुआ करेंगे। मेरे को पता नहीं अब आपको सही में अच्छा लगा नहीं लगा, बट ठीक है, एटलीस्ट मुझे इतना पता है कि आपको याद जरूर रहेगा। अरे वो कोई आया था, उसने ऐसा बनाया था, पता नहीं हमने कैसे खाया और झूठ भी बोलना पड़ा, लेकिन ये इतना अच्छा हो या बुरा, लेकिन याद जरूर रहेगा, ये मुझे जरूर पता। I'll try to come your place, श्योर, मगर ये पता नहीं कब। कोई Before प्रॉब्लम। I passed. डेफिनेटली यू विल कम, आई नो। चलिए जी, बहुत 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 गुलमर्ग में हम में से ज्यादातर लोग आते हैं स्कीइंग, गोंडोला राइड्स या फिर बर्फ से खेलने, बट कभी इन प्री प्लान्ड आइटिनरीज के पर्दों को हटा के देखिए, शायद एक नया गुलमर्ग, एक नई वैली और एक नया कश्मीर दिखे।